Hello students, welcome to the next session, and in this session we will be studying complex numbers, one of the most important topics of algebra. Complex numbers के अंदर let us start with the theory first. फटाफट theory revise करते हैं and then questions. Pattern आपने पता ही है कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? The complex number system, a complex number is of the form a plus iota b, where a and b are, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना. ए और बी कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स. आयोटा, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा इमेजिनरी यूनिट, एंड द स्क्वायर ऑफ आयोटा इज -1, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली जेड से डिनोट करते हैं. जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. ए को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ठीक है ना, ए और बी खुद रियल होते हैं, ध्यान रखना है. ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किस फॉर्म में लिखा था जेड को? We had written it in the form of a plus iota b. If b is 0, then it is called a purely real complex number. If a is 0, then it is called a purely imaginary complex number, and if b is non-zero, then it's called imaginary. 0 plus 0 iota is the only complex number. 0 plus 0 iota is the only complex number which is purely real as well as purely imaginary. ठीक है ना, ध्यान रखना है. 0 plus 0 iota is the only complex number which is purely real and purely imaginary. ठीक है, the set R of real numbers is a proper subset of the complex numbers. होते हैं भाई सबसे natural numbers, then whole numbers are a subset of integers are a set of rational numbers are a subset of real numbers, and real numbers are a subset of complex numbers. All real numbers are complex numbers, right? 0 is purely real, ये जो मैं आपको बता रहा था, but it's not imaginary, because imaginary की definition थी b should not be 0. ठीक है, also you can remember iota square is -1. in fact you can remember iota raised to the power 4n is always 1. iota raised to the power 4n plus 1 is iota raised to the power 4n plus 2 की जब पावर आएगी इसमें, तो it will be -1, and iota raised to the power 4n plus 3 will be minus iota for n belongs to, you can say, natural numbers. ठीक है ना. ओके, रूट a into रूट b equals to रूट ab. ये हम कब लिखते हैं? when at least one of a और b is non negative. ठीक है ना, अगर दोनों नेगेटिव हैं भाई, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ऑफ -2 इंटू अंडर रूट ऑफ -8 लिखना है. अब आपने इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ 16. ना रूट 16 तो सिर्फ 4 ही होगा, तो ये गलत हो गया बेटा. अंडर रूट ऑफ -2 मतलब रूट 2 आयोटा इंटू 2 रूट 2 आयोटा. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई रूट 2 टू रूट 2 4 एंड आयोटा -1, आवर आंसर इज -4. ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन करते टाइम बी वेरी केयरफुल. डायरेक्ट एल्जेब्रा वाली जो हम प्रोडक्ट हैं कब करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है at least one of a or b should be non-negative, then you can multiply two individual square roots into and combine it into 1. ठीक है. Now some of the basic algebraic operations that we can use, that we can apply on two complex numbers. Fundamental operations with complex numbers कौन कौन से हैं? In performing operations we can proceed as the algebra of real numbers. ठीक है, कैसे? अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, a प्लस बी आयोटा इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, तो व्हाट विल डू? वील ऐड देयर रियल पार्ट्स एंड वील ऐड देयर इमेजिनरी पार्ट्स. तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा. सेम विद सब्ट्रैक्शन, रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट. प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, a इंटू सी एंड b इंटू डी आयोटा आयोटा -1, तो ए सी माइनस बी डी विल बिकम द रियल पार्ट. एंड व्हेन b आयोटा इज मल्टीप्लाइड बाय c, बी सी and AD iota, तो BC iota AD iota, iota के साथ AD plus BC, तो that is the imaginary part. So normal methods हैं how we add, subtract and multiply. Division कैसे करते हैं? We have to divide two complex numbers. So what we do, we rationalize it. पढ़ा है हमने rationalization, मतलब denominator वाले complex number के conjugate से. Conjugate क्या होता है? Change the iota with, replace the iota with minus iota, है ना. हम आगे वैसे पढ़ेंगे पर इतना I hope आपको पता है. तो c plus d iota into c minus d iota multiply and divide. Now you should know that ये a plus b into a minus b है, तो a square minus b square.
a square मतलब c square minus d iota का square. Now d iota square will be minus d square, तो it becomes c square plus d square. ठीक है ना, so it becomes c square plus d square. और ऊपर जो है वो हम मल्टीप्लाई कर ही देंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो हमने सीखा था. So we'll get we'll reach till the division. तो division of two complex numbers में we have to rationalize it या denominator के conjugate से multiply divide करके then we will proceed. ठीक है. Then inequalities in complex numbers are not defined. ठीक है ना, inequalities complex number में define नहीं होती. क्यों? क्योंकि complex number क्या होता है बेटा? What is a complex number? Complex number एक point है. Complex number जो है it's an ordered pair x, y. अगर z लिखा हुआ है x plus iota y, तो it represents a point whose coordinates are x, y. In which plane? In complex plane, or it's also called Argand plane. Argand plane या complex plane, right? In this plane, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा है हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में what we had studied that x axis and y axis, ये भी x और y है, बट यहाँ जो x axis है we call it as a real axis and y axis को we call it as an imaginary axis. So a point x, y in the complex plane represents a complex number x plus iota y. On real axis जो भी points आएंगे they are always purely real points, और जो imaginary axis पे आएंगे they are all purely imaginary points. So हम complex plane में, Argand plane में जो भी point represent करते हैं वो complex number represent होता है. तो यार दो complex numbers के बीच की inequalities की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये तो point है, एक point दूसरे point से छोटा है बड़ा, it's an illogical thing. So inequalities are not defined in case of कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है ना, रियल नंबर्स में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होता है तो हम कहते हैं a और b दोनों 0 होंगे अगर a और b रियल है. पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब चीजें वैलिड नहीं है. जैसे कि मान लीजिए z1 को मैं 1 ले लूं और z2 को मैं आयोटा ले लूं, तो अगर स्क्वायर और ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो दोनों के 0 होने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये रियल सिस्टम के लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस थिंग इज नॉट वैलिड. ठीक है. Equality of two complex numbers. Now if we have to equate the two complex numbers, let's say z1 and z2 are equal, z1 is a1 plus iota b1, z2 is a2 plus iota b2, then the two complex numbers are said to be equal if their real and real part are equal and imaginary part are equal. a1 is equals to a2 and b1 is equals to b2, दोनों चीजें होनी चाहिए, then the two complex numbers are said to be equal. ठीक है बेटा. चलिए, now we'll come up onto some of the basic questions based on this algebraic methods that we have studied. So the question is saying the imaginary part of this is, so this is basically finding a square root of an imaginary or a complex number. ठीक है. So let us see what is this written first. 3 plus 2 root of minus 54. देखो root minus 1 तो आयोटा तो बन ही गया. Now 54 is 27 into 2. 27 into 2 तो मतलब मैं उसको 3 root 6 लिख सकता हूँ ना बेटा. 3 अंदर जाएगा 9, 9 6 54 हो जाएगा ना ऐसे. I can write it in this way कि power 1 by 2 minus my motive, my aim is to convert whatever written here एज अ परफेक्ट स्क्वायर. मैं इसको किसी एक्सप्रेशन का, किसी एक टर्म का उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, देन आई विल बी एबल टू टैकल द पावर 1 by 2. तो दिस मस्ट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होनी चाहिए, एंड दिस होल टर्म शुड बी 2ab, राइट. सो वन ऑफ देम इज ए एंड वन ऑफ देम इज बी. 2 से 2 तो गया. अब हमारे पास √3 आयोटा √6 लिखा है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए मैं a को 3 आयोटा मानता हूं तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -9 और √6 का स्क्वायर +6, तो -9 और +6 से -3 आएगा. मुझे 3 चाहिए था, तो इसका मतलब अगर मैं a को 3 ले लूं और b को √6 आयोटा ले लूं तो आई थिंक मैच कर जाएगा बेटा. a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा -6, तो 9 -6 से 3 आ जाएगा और 2ab से आ जाएगा. तो आई कैन राइट ये जो लिखा हुआ है 3 प्लस √6 आयोटा का होल स्क्वायर पावर 1 by 2 माइनस दिस विल बिकम 3 माइनस √6 आयोटा का होल स्क्वायर पावर में 1 by 2.
नाउ यू शुड रिमेंबर दैट इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट विल गिव यू टू आंसर्स प्लस माइनस. स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो सिर्फ +4 होता था, पर जब इमेजिनरी नंबर आता है उसके स्क्वायर रूट से यू विल गेट टू पॉसिबल आंसर्स, प्लस माइनस 3 प्लस √6 आयोटा, एंड क्योंकि ये माइनस है तो इट विल बिकम माइनस प्लस 3 माइनस √6 आयोटा. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इमेजिनरी पार्ट कैन बी, इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है. मान लीजिए मैं इसको प्लस साइन से ओपन करूं तो 3 प्लस √6 आयोटा, जैसे माइनस से तो -3 प्लस √6 आयोटा, तो 2 √6 आयोटा हो सकता है, पर ऑप्शन में नहीं है. अच्छा, इसको मैं माइनस से ओपन करूं और इसको प्लस से, तो -3 माइनस √6 आयोटा प्लस 3 माइनस √6 आयोटा, तो -2 √6 आयोटा. टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, उनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है. तो एक आंसर हमारे पास आ रहा है, दैट इज -2 √6. सो बी ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट. क्या चीजें बताई, अगर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो अंदर वाली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी विल कम विद टू साइंस, प्लस एंड माइनस साइन. ठीक है. Okay, next question. If a and b are real numbers, a and b are real numbers such that 2 plus alpha raised to the power 4 is a plus b alpha, जहां अल्फा हमें एक ऐसा नंबर कुछ दे रखा है. ठीक है, वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप शायद देख पा रहे होंगे ये ओमेगा लिखा हुआ है. ओमेगा इज अ क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. बट ठीक, इसका यूज, इसका नहीं भी पता है तो भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन a प्लस बी इज इक्वल टू, तो हमें a प्लस बी बताना है. ठीक है, तो मैं अगर अल्फा की वैल्यू बेटा इसमें रख देता हूं तो 2 प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2 होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फा. ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 4 -1 3 प्लस √3 आयोटा बाय 2 रेज टू द पावर 4. आई कैन टेक √3 कॉमन, √3 रेज टू पावर 4 बाहर आएगा तो 9 बन जाएगा, और बचेगा क्या, √3/2 प्लस आयोटा बाय 2 होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फा. नाउ अब देखो बेटा, डायरेक्ट पावर 4 करना कर सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर करके, बट इट बिकम्स अ बिट इजी इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, ई रेज पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, राइट. तो आई होप थोड़ा इतना अपन को पता हो कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y को अपन r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं. तो अगर ये cos थीटा है और 1/2 साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको 9 टाइम्स इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा, कितना हो गया बेटा, π/6 लिख सकता हूँ. ई रेज पावर आयोटा π/6 होल रेज टू द पावर 4. सो 9 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 4 π/6, दैट बिकम्स 2 π/3. ठीक है, तो cos 2 π/3, what is the value of cos 2 π/3, -1/2 प्लस आयोटा sin 2 π/3, that is √3/2. ठीक है. now what will we do, we will be comparing the coefficients from both the sides. ठीक है, the value of a is coming out to be, so what is the value of a coming out to be, a plus b alpha के बराबर है ना. तो basically I should write like this, it is coming out to be -9/2 plus 9 √3/2, 9 √3 iota by 2 is equals to a plus b alpha, right. a और b निकालना है, अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो a प्लस b टाइम्स -1/2 प्लस आयोटा √3/2. तो कंपेयरिंग द, नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट 9 √3/2, और यहाँ कितना आ रहा है, b √3/2. √3 2 से 2 gone, the value of b is coming out to be 9. And comparing the real part, that is -9/2 is equals to b a minus b/2. So the value of b is, because 9, तो रखते ही कैंसिल हो जा रहा है. So we are getting the value of a as 0. So the value of a is 0 and the value of b is 9. So our correct answer, the value of a plus b is coming out to be 9. C option. ठीक है बेटा. What we have done just here, we had converted this into Euler's form, or you can convert it into trigonometric form, because it becomes much easier to take power 4, power 6 or power 8 of such complex numbers. ठीक है ना. Next, now we come to the
टर्म विच इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ अब मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट होता है x, y. तो जो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वो ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है ज्योमेट्रिकली. सो z इक्वल टू a प्लस आयोटा बाई आयोटा बी, मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड z. ये मॉड बेटा वो मॉडुलस वो वाला नहीं है, प्लस माइनस आता है जो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. सो इट्स वैल्यू इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वही यहां लिखा है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है ना. And what does mod z1 minus z2 represents? It represents the distance between z1 and z2. दो पॉइंट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1 x2 y2, तो z mod z1 minus z2 represents the distance between those two points. ठीक है. Now the properties of modulus. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन पे. भाई ऐसा मत करना mod z1 प्लस z2, बहुत जने से mod z1 प्लस mod z2 लिख लेते हैं, ये गलत है भाई. इट्स नॉट लाइक दैट. मॉडुलस की प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट और डिवीजन पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है. मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कैन बी रिटन एज मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2. सिमिलरली डिवीजन पे भी हम ये जो मॉडुलस है, ये यहां सही नहीं लिखा हुआ है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ z2 इज नॉट जीरो और z2 इज नॉट जीरो. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. अच्छा, नाउ दिस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल इनइक्वालिटी. कई बार मॉडुलस इनइक्वालिटीज को, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज के लिए काफी यूजफुल होती है. mod of z1 plus z2 is always less than equals to mod z1 plus mod z2 and is always greater than equals to modulus of mod z1 minus mod z2. ठीक है ना. mod z1 plus z2 is always less than equals to mod z1 plus mod z2 and greater than equals to modulus of mod z1 minus mod z2. ठीक है. तो ये जो है हमें याद रखना है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी. अभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसे, ठीक है, देखो मैं समझा तो सकता ही हूँ. ट्राइंगल इनइक्वालिटी में एक्चुअली क्या है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं कि ये z1 वेक्टर है और यहाँ पर ये z2 वेक्टर है. तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ ऐसे, ठीक है ना, इफ आई कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, तो बेटा इसकी ये वाली जो डायगोनल आएगी, ये आएगी z1 प्लस z2 के बराबर और ये डायगोनल आएगी z1 माइनस z2. तो एक ट्राइंगल में मॉड z1, इसकी जो लेंथ है मॉड z1, इस वेक्टर की लेंथ मॉड z2, तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो उससे ये प्रूव हो जाता है. अपन को तो ये याद रखनी है ताकि हम इसका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में यूज कर सकें जब कई बार मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं. हम देखेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं आपको कैसे यूज करवाता हूं इसका. ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं. इफ दिस इक्वेशन हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है. ठीक है. तो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करता हूं बेटा, सम ऑफ रूट्स, तो आयोटा बीटा और माइनस आयोटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा. सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक इक्वेशन. और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकता हूं बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उससे आप देख पाएंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी की वैल्यू आ रही है 45. ठीक है. So, or you also have been given mod of z plus 1. Mod of z plus 1 is equals to 2 root 10. ठीक है. Then which of the following statement is a correct statement? That is what we have to find. Okay. तो अच्छा, ये भी लिखा है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं दे सेटिस्फाई, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. अब अगर मैंने यहाँ पे z की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखा तो रियल पार्ट z प्लस 1 प्लस आयोटा बीटा, यहाँ ये रखूंगा तो z प्लस 1 माइनस आयोटा बीटा, उसका मॉड दोनों का सेम ही आएगा. तो फ्रॉम दैट आई कैन राइट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया है ना,
मॉड है तो अंडर रूट के साथ आता है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो 40 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू यहां रख सकता हूं? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -b/2, तो -b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा बीटा स्क्वायर, यहां से बीटा स्क्वायर इज 45 minus alpha square, and the value of alpha square is b square by 4. b square by 4 is equals to 40. Now I will calculate it. Square करूंगा तो I will get b square by 4 plus 1 minus b plus 45 minus b square by 4 is equals to 40. तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4 से बी स्क्वायर बाय 4 तो कैंसिल ही हो गया बेटा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। फ्रॉम हेयर I have directly obtained the value of b. अब ऑप्शन चेक ही तो करना है, 36 b स्क्वायर माइनस 6 30 आना चाहिए, गलत, b स्क्वायर 36 प्लस 6 42 नहीं, b स्क्वायर प्लस b नहीं, b स्क्वायर माइनस b 30, दिस इज राइट, 36 माइनस 6 इज 30, सो d ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सो आई हैव एज्यूम्ड द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हेल्प से इस इक्वेशन का, जब मैंने z को अल्फा प्लस आयोटा बीटा या मैं कह रहा हूं अल्फा माइनस आयोटा बीटा कुछ भी रखो, मॉडुलस यही आएगा। देन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर इन टर्म्स ऑफ b, आई हैव कैलकुलेटेड b एंड देन वी आर चेकिंग द ऑप्शंस। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, हमें एक तो ये रिलेशन ट्रू है दे रखा है और ये भी दिया है क्या, उसका जो मॉड है वो 5/2 है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 3 आयोटा विल बी what? ठीक, so let us first apply the property mod of z1 by z2 can be written as mod z1 upon mod z2। हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था डिवीजन होता है तो मॉड को अलग अलग चढ़ा सकते हैं, इसका मतलब मॉड z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2 आयोटा हो गया, करेक्ट है। नाउ मॉड z माइनस आयोटा, let us assume z to be x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। नाउ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड, तो रियल पार्ट तो x ही रह जाएगा, है ना, तो x स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट y माइनस 1 हो जाएगा, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर गॉन, कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, y आ जाएगा यहाँ से, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है बेटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर गॉन, इफ यू टेक दिस ऑन वन साइड यू विल गेट 6y इज इक्वल्स टू माइनस 3 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ y, तो z के लिए y तो आ गया, x कहां से आएगा? नाउ आई विल मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन, मॉड ऑफ z दैट इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 वेयर y इज माइनस हाफ, तो x स्क्वायर plus 1/4 is equals to 25/4. So x square becomes 6. So x becomes plus minus root 6. ठीक है क्या? So we have obtained the value of x and y. So our complex number z becomes plus minus root 6 plus y is minus half. So minus iota by 2. Minus iota by 2. माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है, दिस बिकम्स z, सो z प्लस 3 आयोटा, सो व्हाट विल बी z प्लस 3 आयोटा, दैट इज प्लस माइनस रूट 6, ठीक है, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा बाय 2, वी कैन कंबाइन दीज टू टर्म्स बिकॉज बोथ आर इमेजिनरी, so that is plus minus root 6, 3 to the 6 plus 5/2 iota. So mod of z plus 3 iota becomes root over root 6 का square, that is 6 plus minus कुछ भी करो plus 25/4. So this becomes 24 plus 25 49, root 49/4, that is 7/2. So 7/2 आई थिंक यहाँ ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई, या ए में बेटा 7/2 आएगा, है ना, 7/2 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। जेड बार का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, जेड बार भाई है तो सही मतलब, पर ये मॉड जो है वो जेड बार के बराबर तो है ना, वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, जेड प्लस 3 आउट 7/2, ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों मॉडुलस के बेस प्रॉपर्टी से हमने एक्स और वाई निकाल लिया, उससे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फिर हम उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना, पहले पूछा गया ये क्वेश्चन जेई में। इफ mod of z minus 4 by z is 2, then the maximum value of mod z. Now I will be using that triangle inequality which I told you. सबसे पहले ये जो mod z लिखा हुआ है, क्या मैं इसको मॉडुलस ऑफ z माइनस 4/z प्लस 4/z करके लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब मैं अगर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मान लो, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। अभी हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस 4/z प्लस मॉड ऑफ 4/z। करेक्ट? This is modulus z is less than equals to, the value of this is given to be 2 plus modulus of z1 by z2 is modulus of 4. Now 4 is a constant value, so it becomes 4 upon mod z. Now this is just a simple modulus inequality. If I take LCM, mod z square is less than equals to 2 modulus z plus 4, or mod z square minus 2 mod z minus 4 is less than equals to 0. So if we factorize it, minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a, root 20 मतलब 4 into 5 2 root 5, तो 1 plus minus root 5. So from here we will be getting mod z is less than equals to 1 plus root 5 and greater than equals to 1 minus root 5, which is not possible. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, 0 से ज़्यादा होगा और 1 प्लस रूट 5 से कम होगा। ठीक है, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस रूट 5, विच इज रिटन इन ऑप्शन ए। सो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। जो गिवन डेटा था उसका यूज करने के लिए मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वो टर्म z माइनस 4/z क्रिएट किया, फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज करके इसे स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करते ही मैं एक नॉर्मल इनइक्वालिटी, नाउ मॉड z इज अ रियल क्वांटिटी, डिस्टेंस है ये, तो एल्जेब्राइक एक नॉर्मल टर्म x मान लो, x जैसा कुछ हो गया, तो नॉर्मल इनइक्वालिटी बन के सॉल्व किया, जिससे मैक्सिमम वैल्यू तक मैं पहुंच गया। ठीक है बेटा, थैंक यू प्यारे बच्चों। आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, गुड। चलिए बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे आई होप सब इसके बारे में जानते हैं। कॉन्जुगेट से हम रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही हैं। व्हाट इज अ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z bar, which is a minus iota y. Basically we have to replace iota with minus iota, so we get the conjugate of a complex number. z bar is the mirror image of z about the real axis. अगर z मान लो x, y पॉइंट था, पॉजिटिव है x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो z बार x, माइनस y हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो रियल एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है ना। इनफैक्ट z बार माइनस z और माइनस z बार अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे, तो बेटा इनसे हमेशा जो फिगर बनता है चारों पॉइंट से, दैट विल बी अ रेक्टेंगल। मान लो अगर ये z था तो ये z बार है, ठीक है ना, ये माइनस z है, ये माइनस z कॉन्जुगेट है, ये लेंथ हो जाएगी 2x, ये लेंथ हो जाएगी 2y, x और y इक्वल होंगे तो स्क्वायर, अदरवाइज इट विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट बिल्कुल आपने याद कर लेनी है। z का मॉड या z बार का मॉड, z मतलब x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस या x, माइनस y का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होता है। इनफैक्ट दिस इज इक्वल्स टू माइनस z ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस z कॉन्जुगेट ऑल्सो, सब ये डिस्टेंस एक साथ इक्वल होते हैं। This is second one, is one of the most important properties. Z into Z conjugate is always mod Z square. बहुत बार जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का mod Z square लिखा है, आप उसे Z बार लिखकर ही आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है।
अच्छा, अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पे अलग अलग चढ़ा सकते हैं। मॉडुलस ऐसा नहीं था, मॉडुलस सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन पे अलग अलग चढ़ता था। कॉन्जुगेट हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे इंडिविजुअल, कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेटर हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सब पर हम इंडिविजुअली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज, ये यहाँ पर भी अगेन टाइपिंग एरर, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये जो मैंने पढ़ा इससे लिखा, तो इसको क्या हम z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे z1 कॉन्जुगेट मॉड z1 स्क्वायर, z2 कॉन्जुगेट मॉड z2 स्क्वायर, उसके अलावा z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ऐसे टर्म आएंगे। सो वी कैन प्रोसीड मॉड z1 z2 स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आगे कभी जरूरत पड़े तो वी कैन प्रोसीड इन दिस वे। ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सही लिखा हुआ है, ये मॉड w बार नहीं, ये z1 प्लस z2 बार है। ठीक है। अच्छा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन बिकम्स z। ठीक है। उसके अलावा ये सब ठीक है यार, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फंक्शन ऑफ z तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा उस फंक्शन में जहां भी z है उसको z कॉन्जुगेट से रिप्लेस करने से। नॉट अ बिग डील, बट स्टिल पढ़ सकते हैं एक बार के लिए, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। ठीक है। देन कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तीन चीजें पढ़ी, मॉडुलस प्रॉपर्टीज में, एक फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉन्जुगेट एंड देन आर्ग्यूमेंट। ध्यान रखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसका मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस उसका बताएगा ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। अब अगर ओरिजिन से मैं सिर्फ मॉडुलस देता हूं, मैं बोलता हूं मॉड z इक्वल टू 2, इसका मतलब एक पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो एक पूरे सर्कुलर सरकमफ्रेंस पर सेंटर 0 0 और रेडियस जिसका 2 है उस पे लाई करेगा। मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दे दूं मान लो, तो मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2 मतलब 1,0 सेंटर हो गया, उससे एक सर्कल बनेगा। तो सिर्फ मॉडुलस अगर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे कितने भी इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसलिए किसी को यूनिकली डिटरमाइन करना है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय द एंगल विच OP, O इज ओरिजिन और P वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्स एक्सिस। ठीक है ना, जो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z या इसको P पॉइंट अगर मैं बोलूं, O था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x या रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट में भी बेटा तीन टाइप के होते हैं। जब क्वेश्चन में सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखा है मतलब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। मैं लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट तीन टाइप के होते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z। उसके अलावा होता है जनरल आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट, और एक होता है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z जैसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, ये दोनों सेम ही चीज है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, या जैसे क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमें ये आंसर देना होगा ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आंसर देना होता है। तो इसकी जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक होती है बेटा, -π से π, -π पे ओपन π पे क्लोज, इस इंटरवल में। जनरल आर्ग्यूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z जो भी है ये थीटा प्लस 2nπ हम उसमें कर देते हैं, तो जनरल आर्ग्यूमेंट आता है। और लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपको 0 से 2π में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना होगा, वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद वो जिस क्वाड्रेंट में है फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पूछा है उस इंटरवल में आपने उसका आंसर देना है। बस जनरल आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड में 2nπ जोड़ना है वो अलग चीज है। एम्पलीट्यूड जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड और लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट सेम आंसर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भी दोनों का सेम आंसर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपन ऐसे घूमकर नहीं जा सकते, इसका आर्गुमेंट देने के लिए मुझे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर देना होगा तो वो नेगेटिव आएगा, जबकि लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट 0 से आगे मतलब पाई प्लस करके ही आंसर देंगे, तो वो इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या बताया मैंने, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही हमें आंसर देना होगा। तो आर्गुमेंट हमें ये बताता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। तो अगर जैसा मैं आपको बोल रहा था मॉडुलस दे दे, मॉडुलस आपको एक सर्कुलर पाथ, एक फिक्स पाथ पे मूव करवाएगा, और आर्ग्यूमेंट आपको किस एंगल में बढ़ना है, बेसिकली एक रे, अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट दिया है तो हम एक ओरिजिन से एक रे निकलती है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो एक सर्कल और एक रे के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट हमें मिल जाता है तो हम फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बता पाते हैं। समझ में आई बात? मॉडुलस इक्वल टू कांस्टेंट से एक सर्कुलर लोकस बनता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू समथिंग गिवन से एक रे बनती है, दोनों देने से हमें फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे याद रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाई। ये 2m पाई क्यों डालते हैं, इसे कहते हैं करेक्शन फैक्टर, ताकि हमने जो बोला हमारा आंसर भाई हो सकता है z1 का आर्ग्यूमेंट 120 था, इसका आर्ग्यूमेंट z2 का लेट्स से कुछ भी 100 डिग्री था, तो 120 प्लस 100 तो 220 हो गया। अब हम 220 जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो हम रिडक्शन करने के लिए उसको जिस क्वाड्रेंट में उसको प्रॉपर रेंज में लाने के लिए 2m पाई लिखते हैं, वो वहीं हमने एडजस्ट करना होगा। ऐसे ही z1 बाय z2 आर्गुमेंट इज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर, या इनफैक्ट इसे मैं जनरलाइज कर देता हूं, z की पावर n है तो यहां बाहर n लगा लो, बिल्कुल लॉग के जैसी प्रॉपर्टीज है, प्लस 2m पाई हमेशा करेक्शन फैक्टर आता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले भी हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो प्लस पाई बाय 2 होगा या माइनस पाई बाय 2 होगा। प्योरली रियल है तो वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो या तो 0 आएगा या उसका पाई आएगा। ठीक है ना? तो यही कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये कुछ ऐसा नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 मतलब एंगल ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, z2 माइनस z1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका आर्ग्यूमेंट कितना है वो हमें बताना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसी के थ्रू हमारा रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 is mod z1 minus 1, real part of z2 mod z2 minus 1 and argument of this, तो imaginary part of z1 plus z2 क्या होगा पता लगाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं z1 को x1 प्लस आयोटा y1। देखो बेटा ये और ये इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मैं समय बचा सकता हूं, एक में कैलकुलेशन करूंगा, उसका रिजल्ट डायरेक्टली दूसरे के लिए मैं यूज कर लूंगा। z2 को मैं मान लेता हूं x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, रियल पार्ट आर ई जेड वन मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 दैट इज x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस 1 प्लस आयोटा y1, तो मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है। x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, सो इधर आएगा माइनस 2x1, तो 2x1 इज इक्वल टू 1 प्लस y1 square, and similarly from this equation z2, so it will become 2x2 is equals to 1 plus y2 square। सेकेंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई, इनकी हेल्प से मैं एटलीस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूं। अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 सॉरी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर दैट इज y1 माइनस y2 इनटू y1 प्लस y2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे लास्ट में इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस z2 मतलब मुझे y1 प्लस y2 ही निकालना है, तो यहां से मेरे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। बढ़िया, ये रिलेशन मैं बना के रख लेता हूं, जरूरत जैसे पड़ेगी देख लूंगा। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई तो y1 प्लस y2 आ जाएगा। मुझे एक डेटा और दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज पाई बाय 6। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 मतलब x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2
का जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, π/6। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है एंगल बना रहा है, तो इसको क्या मैं tan इनवर्स y/x लिख सकता हूं, मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आर्ग्यूमेंट वैसे भी रेंज में है ही π/6, तो ये ऐसे लिख लूंगा। तो यहां से y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 की वैल्यू tan π/6 मतलब 1/√3 मेरे पास आ गई, 1/√3। तो अगर मैं इसका यूज यहां कर लूं कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 जो था, इसकी वैल्यू मेरे पास 1/√3 आ रही थी, तो इसका रेसिप्रोकल √3 हो गया। तो यहां रख दी मैंने, अगर समझो ना, यहां से वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू 2√3 आ गई, जो कि लिखा है ए ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन फॉर दिस बिकम्स द राइट आंसर। समझ में आ गई बात बेटा? सो बहुत बढ़िया है, आर्ग्यूमेंट को जैसे हमने इंटरप्रेट किया तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, मिक्स्ड एक तरीके से, मॉडुलस का भी आर्ग्यूमेंट का भी, फ्रॉम विच वी हैव रीच्ड टिल आवर, जो भी चीज पूछी है क्वेश्चन में उधर तक। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन तीन तरह से कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x और y की फॉर्म में, जो कि हम अभी तक कर ही रहे हैं। आपको सबको पता है z को x प्लस आयोटा y रखते हैं, तो इन एन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। ठीक है, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन से लेकर p तक का डिस्टेंस r विच इज मॉड z, और थीटा आर्ग्यूमेंट, सब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस, ठीक है, थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, z पता है, थीटा पता है, एंगल मेड बाय ओपी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चंस में जनरली कार्टेशियन, कई बार क्वेश्चन में लोकस की बात करता है, क्या कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसी बात करता है, तो हम जनरली इसी मेथड से आगे प्रोसीड करते हैं, x प्लस आयोटा वाली फॉर्म से। देन कम्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और अ पोलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमने जब इसको प्लेन में रखा था, ठीक है ना, ये z था विच इज x, y, दिस वाज मेकिंग एंगल थीटा, दिस वाज r विच इज मॉड z। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, दिस इज x एंड y, सो आई कैन रिप्लेस x with r cos theta and y as r sin theta, where r is what? R is what? Mod z, and theta is argument of z. So I can represent x plus iota y in the form of r cos theta plus iota sin theta, which is called the trigonometric form or the polar form of a complex number. Sometimes this is also denoted as cis theta. क्या लिखते हैं इसको? cis theta, cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, है ना, लिखने का तरीका है सिस थीटा। तो आपको समझ में आना चाहिए, थीटा आर्ग्यूमेंट है ना, पहले कॉस ही आता है, बाद में साइन आता है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ खास आपके काम का नहीं है, इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस भी बोलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एच एंड साइन हाइपरबोलिक एच, पर मतलब नॉट टू बी रिमेंबर्ड, ऐसे कुछ खास बात नहीं है, आएगा तो लिखा हुआ आएगा अगर कभी इसका यूज करना हुआ तो। ठीक है, then comes the exponential form or the Euler representation. We say that ये जो वैल्यू थी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर होती है। देखिए हम प्रूव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो है एक्सपेंशन जो होता है, सीरीज एक्सपेंशन लगाकर, उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक तरीका होता है, वी कैन प्रूव इट, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e रेज टू द पावर आयोटा थीटा के भी इक्वल होता है। तो हम जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा था, उसको r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, या जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, लिख सकते हैं। r वही मॉडुलस z, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, देन कम्स वन मोर रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड अ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नाउ इट बिकम, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस वगैरह के लिए तो इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम आगे इनका रोटेशन करेंगे। वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर्स चैप्टर जो पढ़ा है मैथ्स में, वी डोंट रोटेट एनी वेक्टर्स, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, बट बाय कन्वर्टिंग दैट इनटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन रोटेट देम आल्सो। सम ऑफ द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी, है ना, ज्योमेट्री में बहुत आसान हो जाता है कई बार, बाय रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करने से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, so vectorial representation क्या है? Every complex number can be considered
एज इफ इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो z जैसे x प्लस आयोटा y था, तो हम उसको OP वेक्टर इज इक्वल टू z, है ना, जहां OP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड z जो है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको याद है बता रहा था कि अभी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर, तो उसको एज अ पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन कर कर एक पोजीशन वेक्टर जैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये z तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये OP पॉइंट है, तो OP वेक्टर जैसे हम उसे मान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं, देन विल गेट अ बेटर फील ऑफ इट। इफ रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये जो x कॉमा ये y है, मतलब z जो पॉइंट है वो इनमें से किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कहां लाई करता है, लोकस क्या है वो बताना है। तो उसके लिए लोकस के लिए तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा प्रॉपरली। दिस विल बिकम x माइनस 1 प्लस आयोटा y। लोकस के क्वेश्चंस मुझे पता है x और y की फॉर्म में ही करने चाहिए। 2x प्लस 2 आयोटा y, तो आयोटा के साथ यू विल गेट 2y plus 1. Now we need a real part of this, so for that you will have to rationalize it. 2x minus iota 2y plus 1 divided by 2x minus iota 2y plus 1, ठीक है। Now we definitely know that a plus iota b and a minus iota b is a square plus b square. So on in the denominator we will get 4x square plus 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट में जो डिनोमिनेटर है ये तो आएगा ही आएगा, न्यूमरेटर में रियल पार्ट आएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से। किसको, मैं मार्क कर देता हूं, x माइनस 1 और इसको, और जब मैं आयोटा और आयोटा वाला टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आयोटा खत्म हो जाएगा। तो व्हाट विल गेट x माइनस 1 इंटू 2x एंड आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टाइम्स y इंटू 2y plus 1, and then there will be some terms of iota. So I don't require that because the real part of this is 1. So the real part of this becomes 2x square minus 2x plus 2y square plus y upon 4x square plus 4y square plus 1 plus 4y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। मैंने रियल पार्ट जो था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पिक करके उसे 1 कर दिया। सो आई विल गेट एन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। टेकिंग everything on one side, I'll get 2x square plus 2y square plus 2x plus 4y plus 1 is equals to 0. Sorry, 2x plus 3y. 2 से डिवाइड कर दूं, इधर तक आते आते फील आ गया कि हाँ यार ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन है जिसका कि सेंटर हमसे पूछे माइनस जी कॉमा माइनस एफ माइनस 1/2 कॉमा माइनस 3/4, करेक्ट है क्या। तो कहीं ये अपने ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या भाई। सेंटर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इन दोनों में से सेंटर माइनस हाफ माइनस 3/2 गलत है। तो सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रेडियस निकालना पड़ेगा मेरे को, रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 9/16 माइनस सी दैट इज माइनस 1/2। So this will become root over कितना यहाँ 16, 4 4 जा प्लस 9 माइनस 8, ठीक है क्या। तो it becomes root 5/4. This is the radius. So the diameter of a circle will become root 5/2, the double of it. So C option becomes the correct option. Correct है बेटा। तो whenever a locus type of questions कि क्या represent कर रहा है आता है, so better it's better to be starting with assuming z to be x plus iota y, और जो कंडीशंस हैं वो यूज करते जाएं एंड देन प्रोसीड, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट ठीक है, व्हाट हैपेंस, कैलकुलेशन इतनी तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, नॉट दैट मच टफ। चलें आगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज z be a non-zero complex number such that z square is iota mod z square, then z lies on, again the question based on a locus. So z square, the square of this z square, it becomes x square minus y square plus 2 iota xy is equals to iota times of mod z square, that is x square plus y square. Now equating the real and the imaginary part from both the sides, we are getting x square minus y square equals to 0, and also 2xy is equals to x square plus y square. So from here we will be getting either y is equals to x or y is equals to minus x. So case 1, अगर हम y को x मानते हैं, अगर हम y को x मानते हैं, so this becomes 2x square is equals to x square plus y square, or x square is equals to y square, or we will be getting y is equals to x only. Correct है क्या? We are getting y is equals to x only. by y equals to x, वही 2x square आ रहा था. Correct, no issues. And the second case, if we put y is equals to minus x, so what we will be getting? Y is equals to minus x, minus 2x square is equals to x square plus x square, that is 2x square, or we will be getting x equals to 0 only. And if x equals to 0, then y equals to 0. So either we will be getting y is equals to x, or we will be getting 0 comma 0. So options, the line y equals to x, the real axis, imaginary axis. अब ये line तो पूरी नहीं आ रही, ये line का तो सिर्फ एक पार्ट आ रहा था 0 comma 0. So what our answer will be? The line y is equals to x will be the correct option. ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये. लेट if z be a complex number satisfying real part of z plus imaginary part of z का mod is equals to 4, then mod z cannot be. तो mod z क्या नहीं हो सकता है? अगर हम z को x plus iota y मानते हैं, ठीक है ना, तो रियल पार्ट ऑफ z that is mod x plus mod y is equals to 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? आई होप आपको पता हो. mod x plus mod y equals to 4, अगर हम इसे प्लेन में एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो बेटा ये एक स्क्वायर बनता है. 4 केस आते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन. अब वो लाइन का भी सिर्फ एक लाइन सेगमेंट रह जाएगी क्योंकि x और y पॉजिटिव थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ऐसे जब 4 केस लेते हैं तो टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं, जिनको बनाने से, जिनको देख कंबाइन करके देखने से हमें एक स्क्वायर मिलता है. दिस इज व्हाट 4, 0 पॉइंट, 0, 4 पॉइंट, माइनस 4, 0 पॉइंट एंड 0, माइनस 4 पॉइंट. ठीक है क्या? तो ये टोटल ऐसे हमें इसके ऊपर z पॉइंट नाच रहा है, z पॉइंट इस पे घूम रहा है. तो mod z कैन नॉट बी. अब mod z, तो mod z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब हम जाएंगे बेटा सिमेट्री से, थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं जरा. तो mod z का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इन वर्टेक्स वाले किसी एक पॉइंट पर, जब यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा तो आएगा. तो mod z की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है? 4. ठीक है क्या? अच्छा मिनिमम, हमने देखा है दो कर्व्स के बीच में मिनिमम जो है डिस्टेंस वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है. तो कॉमन नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जब लाइन खींचोगे तो इधर से और इधर से डिस्टेंस मिनिमम आएगा. हम जानते हैं भाई एक पॉइंट का एक लाइन से मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो अगर मैं 0, 0 से x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का ये d डिस्टेंस निकालूं तो ये d डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 4 बाय रूट 2 विच इज 2 रूट 2. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया. तो इसका मतलब mod z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2 रूट 2 हो गई. ठीक है, तो mod z की जो रेंज है वो 2 रूट 2 मतलब रूट 8 से 4 मतलब रूट 16 तक जा रही है. क्वेश्चन पूछ रहा है mod z कैन नॉट बी. क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना भैया, गड़बड़ ना करना. रूट 10 रेंज में है, रूट 8 रेंज में है, रूट 17/2 मतलब 8.5 रेंज में है. क्या रेंज में नहीं है? ए ऑप्शन. सो फॉर दिस कैन नॉट बी रूट 7. समझ में आ गई बात?
तो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने मॉड z की रेंज निकाली पहले ज्योमेट्रिकली। अब कईयों को तो ये जैसे फटाफट समझ में आ गया, अगर ये हमें जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ चीजें जो हमने स्ट्रेट लाइंस में करी हैं प्रैक्टिस, उधर से उठाना भी जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। चलो बेटा, वेरी गुड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कह रहा था, वेक्टर का रोटेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे रोटेशन हो रहा है। सो pz1 and qz2 are two complex one such that mod z1 equals to mod z2, then z2 equals to z1 e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, जैसे कि मतलब क्या कह रहे हैं, ये कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं ये z1 पॉइंट था, ये z2 पॉइंट था और इनके बीच में ये एंगल थीटा था। अब इन दोनों की लेंथ इक्वल थी, ओरिजिन से जोड़ा था। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर मानूं और इसको एक वेक्टर मानूं तो मैं z1 वेक्टर को z2 पे I can rotate this vector in the anti-clockwise direction by multiplying z1 by a factor e raised to the power iota theta. What does e raised to power iota theta factor does? It rotates the complex number z1 by a theta angle in the anti-clockwise direction, so it becomes a vector z2. It doesn't change the magnitude, it just rotates a vector or a complex number by a theta angle in the anti-clockwise direction. और यहां अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखूंगा तो it will rotate in the clockwise direction. It will not change the magnitude. Right? Now, इसका और एडवांस वर्जन z2, z1, z3 ऐसे लिखा हुआ है। Now I have to rotate this vector and I want to convert it into this one. So final minus initial, that is z1 minus z2 को रोटेट करना है। तो जिसको रोटेट करना है थीटा एंगल से, उसके साथ, ठीक है ना। तो मैं आई विल राइट लाइक दिस, z1 minus z2 को I want to rotate it by a theta angle in the anti-clockwise direction, but now their magnitudes are not same, so I will convert them into a unit vector type. वैसी चीज, तो यूनिट वेक्टर में हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, तो I will divide it by a magnitude z1 minus z2. After doing this, after rotation, I'll get a new vector that is z3 minus z2 upon, because it's a unit vector, so I will be dividing by its magnitude. That is what it is written here. ऐसे समझोगे, you will not face any difficulty in this thing. बहुत यूजफुल चीज है बेटा, समझ जाए और इसको फिर हम अपना अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये तो वही चीज लिखी है जो यहां पर लिखी है ना, नथिंग न्यू, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अभी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, z1 p q r s r 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला जैसे एंगल थीटा है, सो हम कौन से वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो z2 माइनस z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, z2 माइनस z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा को रोटेट करेंगे तो फिर हमें z4 माइनस जो है z3 वेक्टर मिल जाएगा। z4 माइनस z3 आएगा, z2 माइनस z1 है ना, को रोटेट करना है तो वी विल गेट z3 माइनस z2 नहीं आएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, z3 माइनस z4 आएगा बेटा ये। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा है उनके, और मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है। तो नथिंग न्यू, यही चीज है भाई, वेक्टर ही तो है, उठाकर हम इसको यहाँ रख सकते हैं। वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस एंड देन वी कैन रोटेट इट। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस एक क्वेश्चन से आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। ठीक है, क्या लिखा है, ए एंड बी आर द टू वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, टेक इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन फाइंड सी एंड डी। ठीक है यार, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके वर्टिसेस हैं, ये ए वर्टेक्स है विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब गलत दिखा है, दिस इज 2 + 3 आयोटा, दिस इज 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, दिस इज 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। ये z नहीं है, जहां भी z है ये सब 2 है बेटा। ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है ना, तो हमें सही ऑप्शन क्या है वो पता लगाना है। सो ए इज अ पॉइंट 2 + 3 आयोटा, लेट्स से दिस इज z1, देन वी हैव बीन गिवन b, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दे रखा है, b 3 + 4 आयोटा, लेट्स से दिस इज z2, this is c and this is d, this is z3 and this is z4। ठीक है, so now we need to find the coordinates of c and d। अब मुझे c और d coordinates चाहिए। सबसे पहली चीज
देखो बेटा, अगर मैं एक ये वेक्टर मानूं और एक ये वेक्टर मानूं, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे रोटेट करूं विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए e की पावर -π/2 फैक्टर चाहिए था। किस वेक्टर को घुमाना है? z1 z2 without changing the magnitude because it's a square. I will rotate it by a angle of π/2, but in clockwise sense, so e की पावर -π/2. So this minus this, 2 minus 3 minus 1 minus iota multiplied by e raised to the power minus iota π/2, that is cos π/2 minus sin π/2, iota sin π/2, तो sin π/2 1, तो it becomes माइनस आयोटा। अच्छा, ऐसा करने से कौन सा नया वेक्टर मिला मुझे? z3 minus z2. I will get z3 minus z2 vector. So this becomes minus minus plus 1 into iota, iota iota minus 1 is equals to z3 minus, now z2 is 3 plus 4 iota. So when this gets on this side, so 3 minus 1 2 and 4 plus 5 iota. So this will be the coordinate of z3, that is 2 plus 5 iota. 2 plus 5 iota, this is also 2 plus 5 iota. This is also 2 plus 5 iota. So 2 plus 5 iota तो सब में सेम लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, that is 2,5, अब देखो करने में तो मैं इस वेक्टर को रोटेट करके यहां तक भी पहुंच सकता हूं, पर क्यों ना मैं जल्दी से अब इसका यूज कर लूं सेक्शन फॉर्मूला कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। तो इन दोनों का, ये अगर x, y पॉइंट था, तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट मैं सेम कर दूंगा। तो दैट इज x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2/2, 2 प्लस 2/2। तो यहां से x इज कमिंग आउट टू बी 1 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, that gets cancelled. So y is coming out to be 4. So it is coming out to be 1 plus 4 iota. 1 plus 4 iota. तो I think यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है मैं सही कर देता हूँ बेटा। ये it's not 2, it will be 4, right? यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा. This is 1 plus 4 iota and 2 plus 5 iota. ठीक है, तो ये जो 2 plus 2 आ रहा है, वैसे भी ये 1 minus आ रहा है, 3 plus आ रहा है, तो this option will become our correct answer. ठीक, कंसेप्ट समझिए। देखिए, करने में मैं डी के लिए भी रोटेशन से जा सकता था, बट क्योंकि मुझे 3 वैसे ही पता चल गए, तो चौथे के लिए, स्क्वायर के लिए, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से भी प्रोसीड कर सकता हूं। ठीक है, तो आई होप रोटेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे एक वेक्टर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसमें तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना था, करना भी होगा तो हम उसको, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ताकि वो यूनिट वेक्टर जैसे बिहेव करे। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस मे वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज डी मोवियस थ्योरम। नाउ व्हाट, इसमें दो केस हैं। केस 1, अगर n कोई भी एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, n अगर इंटीजर है, बेसिकली ये e की पावर आयोटा थीटा की पावर n लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली e की पावर आयोटा n थीटा लिख सकता हूं, या मैं इसको cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकता हूं। मतलब इट बिकम सो सिंपल। खुद सोचो बेटा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था, जैसे √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 10 कैलकुलेट करना है, यार अब देखकर ही घबराहट होती है, 10 पावर कैसे निकालेंगे। पर अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहो, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 पावर 10, तो डायरेक्टली 10 को अपन को एंगल में मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी द आंसर। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस डी मोवियस थ्योरम। दैट इज व्हाट रिटन, n अगर इंटीजर है तो मैं डायरेक्ट n को एंगल में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है ना,
वैसे यहाँ लिखा है cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, और ऐसे n टर्म्स का प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली cos के सभी एंगल्स का सम प्लस आयोटा साइन के सभी एंगल्स का सम हो जाएगा। e की पावर आयोटा थीटा वन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टू इंटू ई की पावर आयोटा थीटा थ्री, तो जब बेस सेम होगा तो e की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री आ जाएगा, तो उसको फाइनली दोबारा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट केस व्हेन n इज इंटीजर एंड इफ द पावर इज अ रैशनल नंबर फॉर्म, p बाई क्यू की फॉर्म होती है, तो हम इसको तब हम कहते हैं इसके जो है बेटा क्यू रूट्स आएंगे, मतलब पावर में 1/3 1/4, इसी से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज, 5 रूट्स ऑफ यूनिटीज, और लाइक दैट वी कैन बी सॉल्विंग। सो द फॉर्मूला फॉर दिस बिकम्स इज, हम करते तो क्या है, p थीटा करते तो हैं, है ना, ऊपर जो है p थीटा, भाई जैसे मान लीजिए पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 2/3 है, ठीक है ना, तो हम बेटा 2 को थीटा से मल्टीप्लाई तो करेंगे, पर उसके साथ हम एक जनरल 2 के पाई मल्टीप्लाई करते हैं और फिर q से डिवाइड करते हैं, और जहां k की वैल्यू 0 1 2 3 की पावर q-1 तक जा रही है। समझ में आई बात? तो बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं आपको यही बोल दूं अभी कि मान लो हमें 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसको पहले किस फॉर्म में लिख लेंगे, हम इसको पहले cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा, ये cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर 1/3, या आप इसको e की पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर 1/3। अब ये अगर इंटीजर होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता, पर नहीं है, तो उसके लिए हमें इसे पहले e की पावर आयोटा, ऊपर 1 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, ऊपर p है वो मल्टीप्लाई कर दिया थीटा से, फिर 2k पाई ऐड करेंगे पाई बाई 3 में, और फिर हम नीचे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जहां k की वैल्यूज स्टार्ट होती है 0 1 और 2 तक, q-1 तक जाना होता है। तो k को 0 रखोगे तो पहला इसका रूट आएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 9, एक रूट आएगा e की पावर, या एक वैल्यू आएगी k को 1 रखने पे 2 पाई प्लस पाई बाई 3 7 पाई बाई 9। आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड देन इट विल कम 2 रखने पे 4 12 13 e की पावर आयोटा 13 पाई बाय 9। अब आप k को आगे रखोगे तो रिपीटेशन वापस से वही वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो क्यूब रूट है तो 3 आंसर आते हैं, स्क्वायर रूट है बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 2 आंसर प्लस माइनस आते थे, तो हमेशा 2 आंसर आते हैं। सो दिस इज हाउ द डी मॉर्वियस थ्योरम इज एप्लीकेबल और हाउ वी अप्लाई इट। समझ में आई बात? चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। एक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखने में तो कितना खतरनाक है ना भाई, 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाय 9। तो हम पहले इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको लिखने के बाद फिर क्यूब व्यूब जो है डीएमटी वीएमटी लगा के, डी मॉर्वियस थ्योरम लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले साइन 2 पाई बाय 9 का इलाज ढूंढना है, तो साइन 2 पाई बाय 9 को मैं cos पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 9 लिख सकता हूं। यस सर लिख सकते हैं, यही बोलोगे ना। आप क्या लिखोगे इसको, cos एलसीएम कितना आ गया 18, 9 पाई माइनस 4 पाई, 5 पाई बाय 18। वी कैन राइट इट एज cos 5 पाई बाय 18। ठीक है, सो 1 प्लस cos, चेक करो फिर से, पाई बाय 2 18, 2 9 जा 9, 2 जा 4, 5 पाई बाय 18। ठीक है ना, तो 5 पाई बाय 18 प्लस आयोटा साइन cos 2 पाई बाय 9 को साइन 5 पाई बाय 18, वही पाई बाय 2 माइनस थीटा करके, अपॉन 1 प्लस cos 5 पाई बाय 18 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 18। अभी मैं क्यूब नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब देखो यहां से 1 हटाना है, तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस 2 आयोटा साइन, इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, क्योंकि एंगल मुझे सेम रखना है, 5 पाई बाय 36 इंटू cos 5 पाई बाय 36 लिखा, ठीक है बेटा, अपॉन ऐसी नीचे भी 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 माइनस 2 आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 इंटू cos 5 पाई बाय 36। अब आप ये देख सकते हो कि cos 5 पाई बाय 36, 2 cos 5 पाई बाय 36 कॉमन आके कट जाएगा,
तो क्या बचा बेटा, cos 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36, ठीक है, अपॉन, अब देखो बीच में यहाँ माइनस आ रहा है, तो उस माइनस को मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 5 पाई बाय 36. आई विल राइट इन दिस फॉर्म, आई विल राइट इन दिस फॉर्म. अब इस फॉर्म में लिखने के बाद देखो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज e रेज टू द पावर आयोटा 5 पाई बाय 36 अपॉन e रेज टू पावर आयोटा माइनस 5 पाई बाय 36. What we can do, we can take this in the numerator and we can write it as, next page पे लिखता हूँ e raised to the power iota, basically these two will get added, तो 5 pi by 18, 5 pi by 18. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्यूब करना है, तो e की पावर आयोटा 5 pi by 18 का फाइनली क्यूब करना है. इंटीजर है, डी मोवियस थ्योरम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो e raised to power iota 5 pi by 6 is what I will get. Now e raised to power iota 5 pi by 6 is cos 5 pi by 6 minus root 3 by 2 plus iota 1 by 2. That will be our answer. Minus root 3 by 2 plus iota by 2, which is written in option number C. So C option becomes the right answer. देखिए कितना बढ़िया DMT से, क्योंकि अगर क्यूब हमें नहीं आता, अगर हम ऐसे नहीं समझते कि क्यूब कर सकते हैं या हम कन्वर्ट नहीं करते, तो कैसे क्यूब करते बेटा, है ना. तो हिम्मत रखनी है, कैलकुलेशन सही करनी है, सही तरह से अप्लाई करेंगे तो जरूर आराम से आंसर तक पहुंच पाएंगे. ठीक है बेटा, दिट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डी मोवियस थ्योरम. ठीक है, नेक्स्ट वी कम अप ऑन टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अगेन ये सब पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आई होप यू नो, वन ऐसे कहते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के जब फैक्टर बनाए, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो इससे तो एक रूट 1 आता है और इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स, एक को हम ओमेगा से, एक को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका जो सम है, सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज 0. ठीक है, also you know that omega raised to the power 3n is always 1, omega raised to the power 3n plus 1 is omega, and omega raised to the power 3n plus 2 is always omega square. ठीक है ना, ये भी चीजें हमें याद रहनी चाहिए. पोलर फॉर्म में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखना है, तो एक तो 1 आ रहा है, दैट इज cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, अनदर वन इज cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, नेक्स्ट वन cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3. अगर आप इन तीनों कॉम्प्लेक्स रूट्स को आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करो, वही नेक्स्ट पॉइंट है, तो दे फॉर्म द 3 vertices of an equilateral triangle. One is 1, 0, another one is here and another one is here. Minus half, root 3 by 2, minus half, minus root 3 by 2. ठीक है ना, when you join you will get an equilateral triangle. ठीक है ना, तो the cube roots of unity they are always on, ये ऐसे बना हुआ है, ये मैं बता दिया, this is an omega point which we नाम दिया है बस, and this is omega square. This can also be omega square, this can be omega, पर generally ऊपर omega और इसको omega square मान लेते हैं. ये important है बेटा, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले जरूर से याद कर लीजिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो हम अभी तक तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते थे. अब वो जो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, उसके फैक्टर ये बन जाते हैं बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में. आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको वही मिलेगा. ठीक है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस. सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, उससे ये फैक्टर्स बन जाते हैं. तो ये तीनों मैंने बोला याद कर लीजिए, फैक्टराइजेशन इनका, दे आर वेरी मच यूजफुल क्वांटिटीज. ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इनके प्रोडक्ट से मिलता है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला फैक्टर बना के मिलता है हमें. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वील प्रोसीड फर्दर. चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा.
again typing here error, it is 30 in the power. So we will be starting by the rationalization. -1 plus iota root 3 को I will multiply with 1 plus iota, 1 minus iota into 1 plus iota whole raised to the power 30. ठीक है, ऊपर कितना आएगा 1 into this -1 plus iota root 3, या चलो एक काम करो रहने दो इसको, है ना. नीचे कितना आएगा बेटा 1 minus iota into 1 plus iota will become 2. तो ये जो 2 है इससे -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 अगर मैं लिख लूं इंटू 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 30 आई एम गेटिंग. अब ये जो है क्या ये जो लिखा हुआ है इसको ओमेगा लिख सकता हूं, तो ये बेसिकली ओमेगा इंटू 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 30 बन गया. इससे थोड़ा आसान हो जाएगा. तो ओमेगा रेज टू द पावर 30 इंटू 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 30. फास्ट हो जाएगा. बस ओमेगा की बात 30 हमें पता है, ओमेगा की बात 3n की फॉर्मेट है, 1 आ गया. अब 1 प्लस आयोटा की पावर 30, ये तो कितना हो गया 1 हो गया. इसको मैं 1 प्लस आयोटा का एक काम करता हूं, स्क्वायर की पावर 15 कर लेता हूं. 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा रेज टू द पावर 15. So this is nothing but 2 raised to the power 15 into iota की power what 12 into iota cube. Now 2 raised to the power 15 as it is, iota की power 12 is 1 and iota cube is minus iota, so it becomes minus 2 raised to the power 15 iota which is written in C option. समझ में आ गया. तो देखो मल्टीप्लाई कर सकते थे पर वही पावर 30 के लिए ये एक फैक्टर ओमेगा बन गया जिससे कैलकुलेशन इतना सारा इमेजिनरी पार्ट खटाक करके खत्म 1 हो गया. So it becomes a bit easy अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कैलकुलेशंस करें. पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर मुझे एकदम क्लिक किया कि यार ये 2 बन रहा है. So that's why we are proceeding in that way. It becomes easier and much faster to solve such questions. Next, the value of रूट 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस रूट 3 माइनस आयोटा की पावर n. अब इसको देखते ही बाइनोमियल एक्सपेंशन की फील आती है, बिल्कुल आती है, कर सकते हैं, पर हमारा आंसर कॉस और साइन की फॉर्म में है. तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्यों ना कन्वर्ट करके सॉल्व करा जाए. तो हमें एकदम से क्लिक करता है रूट 3/2 और आयोटा बाई 2 अगर होता तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो क्या अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो गया. कॉस π/6 साइन π/6, तो 2 कितना लिखूं सिस π/6 की पावर n. अगला देखें तो 2 इंटू रूट 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 सिस माइनस π/6 की पावर n. अब इन दोनों में से 2 की पावर n तो बाहर आ गया, बाकी n इंटीजर, तो cos n π/6 प्लस cos not cos sis n π/6 sis माइनस n π/6, मतलब cos n π/6 प्लस आयोटा साइन n π/6 cos माइनस n π/6 माइनस आयोटा साइन n π/6. वो साइन आयोटा वाले टर्म कट जाएगी, तो 2 की पावर n इंटू 2 cos n π/6. अब से मैंने cos में कन्वर्ट बचा ना, क्योंकि ऐड करके कन्वर्ट कर लिया. सो आंसर 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 cos n π/6 which is written in option number C. बस यही ध्यान रखना है, cos आ रहा है कि साइन आ रहा है, लास्ट में क्या बच रहा है. वैसे भी साइन आ रहा होता ना तो आयोटा आ रहा होता. n की वैल्यू रखकर भी ट्राई कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी ट्राई कर सकते हैं. बाकी क्योंकि cos और साइन की फॉर्म में था तो cos साइन फॉर्म में सिस फॉर्म में कन्वर्ट करके जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नाउ अल्फा इज गिवन टू बी -1 प्लस रूट 3. तो इसको तो देखते ही हम लिख लेंगे ओमेगा. इफ दिस इज a is equals to 1 plus alpha sigma k equals to 0 to 100 alpha की power 2k and b is equals to sigma k equals to 0 to 100 alpha की power 3k, then a and b are the roots of the equation. तो हम सबसे पहले a देखते हैं. Of course वैसे अगर आप ध्यान से k की वैल्यूज रखोगे क्या आ रहा है, k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 1 plus alpha square plus alpha की power 4 and so on. How many terms are there? 0 to 100 101 terms are there. So the sum of gp, this becomes a gp. a is 1 minus alpha which is common ratio alpha square raised to power 101, so 202 upon 1 minus alpha square. Now I'll put omega in place of alpha, 1 plus omega into 1 minus omega raised to the power 202 upon 1 minus omega square. ठीक है,
तो 20 to 201 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो दिस विल बिकम 1, मतलब 3 के मल्टीपल में, तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. So this is coming out to be nothing but 1. 1 plus omega, 1 minus omega रखूंगा तो कट जाएगा, तो value of A is just 1 itself. Now we'll come to B. If we make the series, B की value 1 plus alpha cube plus alpha की power 6 and so on, क्योंकि 3 के था ना बेटा, till total power तक. तो total 101 terms are there. A into 1 minus alpha raised to the power number of terms upon 1 minus alpha. ठीक है, alpha cube, sorry, alpha is omega, alpha is what, omega. So what this series will become, because alpha is omega, see we cannot do this method because alpha is omega and all these terms will become omega 1 1 1 ओनली. तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा की बार 3n है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कॉमन जीपी जो है उसका सम हम तब नहीं निकाल सकते फॉर्मूले से जब कॉमन रेशियो 1 होता है, तो इसमें कॉमन रेशियो एक्चुअली 1 ही आ रहा है. तो दिस 1 गेट्स एडेड हाउ मेनी टाइम्स, 101 टाइम्स. सो 101 इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बी इज द वैल्यू ऑफ बी. ए की वैल्यू कितनी आई 1 और बी की वैल्यू आई 101. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स plus product of the roots, x square minus 102x plus 101 will be our correct answer. A option will be the correct answer. ठीक है ना, ये बढ़िया है बेटा, ध्यान रखना. इससे अगर आप कर दोगे तो यार ये तो 0 कट गया ना, अल्फा क्यूब मतलब ओमेगा क्यूब मतलब 1 उसका कॉमन रेशियो था, तो वो तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, है ना, फॉर्मूला नहीं लगाना है. तो मुझे डायरेक्ट ही करना चाहिए था. डोंट अप्लाई दिस डायरेक्टली. 111 एडेड, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 0 से 100 मतलब 101, तो दैट मीन्स बी इज 101. ठीक है. Okay, now we come to the last part, that is nth roots of unity. जैसे क्यूब रूट्स निकाले थे वैसे ही x की पावर n इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स हैं, कितने n रूट्स आएंगे जिसमें से एक तो 1 होगा और बाकी जो होंगे वो हम कैसे निकालेंगे. तो ये हम क्या है, डी मोवियस थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टिल अल्फा n माइनस 1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी. They are in GP with the common ratio e की पावर आयोटा 2 पाई 1. ये हमें ध्यान रखना है, ये DMT से ही आया बेटा. 1 को मैं लिख लूंगा e की पावर कैसे, e की पावर आयोटा 0, फिर 2 k पाई ऐड करके अपॉन n करूंगा और डी मोवियस थ्योरम से n रूट्स निकाल लूंगा. ये आ जाते हैं. तो हमने ये देखा था कि जब 3 रूट्स आए थे तो उसे इक्विलेटर ट्रायंगल बना था क्योंकि 3 पॉइंट्स आए थे. अब n रूट्स आएंगे तो टोटल n पॉइंट्स आएंगे. एक तो रियल एक्सिस पे हो गई, फिर अगला क्या आएगा, अल्फा 1 फिर अल्फा 2, और ये जीपी में है तो इसलिए उसको अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब करके लिख सकते हैं. तो इनको ज्वाइन करके एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनता है. क्या बनता है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. उससे भी रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटर ट्रायंगल था क्योंकि 3 पॉइंट्स थे. अब एन रूट्स हैं तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हमें मिल जाता है. ठीक है ना. सम ऑफ द रूट्स जो है जो क्यूब रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम ऑफ द रूट्स जो है वो तो सबका सब जो है 0 आएगा ही आएगा. ठीक है. अच्छा, और अगर हम इनकी कुछ पावर p लगा देते हैं तो अगर p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, अगर p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n तो इन सबका सम 0 होता है. एंड इफ इट्स अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, जैसे कि मैंने इसमें भी देखा था ओमेगा जो था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n में था, तो उसका सम n के बराबर आ जाता है क्योंकि हम 1 से n माइनस 1 तक जा रहे हैं, n टर्म्स है तो उनका सम n आ जाता है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है अपन को, जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा, वो डिपेंड करता है जो पावर है. भाई अगर अपन x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं या अपन x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है इवन है ऑड है, उसके हिसाब से +1 या -1 आता है. ठीक है ना, वही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है. उसके अलावा बेटा एक और, जैसे फैक्टराइजेशन जो है आपने ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए x की पावर n माइनस 1 के फैक्टर थे तो वो क्या आएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 से लेकर x माइनस अल्फा n माइनस 1. तो अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 up till x minus alpha n minus 1 is x raised power n minus 1 upon x minus 1, which is nothing but a GP, which is 1 plus x square up till x raised to the power n minus 1. तो बेटा एक ये जो फॉर्मूला है
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 क्या है, इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उनके फैक्टर्ड की फॉर्म में उनकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टिल एक्स की पावर n माइनस 1 तक के सम के भी इक्वल होती है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें x को 1 रखूंगा तो दोनों तरफ 1 रखकर आप ये देखो ना, ये वैल्यू n आ गई, ये वैल्यू, ये पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, x को 1 रखने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये n टर्म्स है तो n आ जाएगा, n को 2, x को 2 रखूंगा तो 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 ऐसे सीरीज बन जाएगी। तो उससे हम ये जज कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब आ गए तो, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से कौन सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है किस फॉर्म का होता है, x प्लस आयोटा y, जहां x और y दोनों कैसे होते हैं, रियल। अब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने इसलिए जोर दिया था x और y रियल, इस पर बेस्ड है। आयोटा की पावर 4 कितना होगा बेटा, ये x, y लिखा है ना, ऑर्डर्ड पेयर, आयोटा की पावर 4 तो 1, आयोटा की पावर 5 आयोटा हो गया, तो ये x और y दोनों रियल नहीं आ रहे, नहीं हो सकता। आयोटा की पावर 8 कितना होगा, 1, और आयोटा की पावर 12 भी कितना होगा, 1, ये आंसर होगा। अंडर रूट माइनस 4, 2 आयोटा कॉमा 4, x इमेजिनरी नहीं हो सकता, log 2 ठीक है, पर log -1 इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं हो सकता, तो इसलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, x और y दोनों रियल होने चाहिए। बेसिक के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, if 1 alpha alpha square up till alpha की पावर n minus 1 are the nth roots of unity, then the value of 3 minus alpha into 3 minus alpha square, ये देखिए कि वही चीज जो मैंने अभी आपको लिखवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके का हम ध्यान रखेंगे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर लिख ही सकता हूं, बोला था ना वो रूट सब जीपी में होते हैं, x माइनस अल्फा क्यूब से लेकर x माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 इज नथिंग बट 1 plus x square till some x की power n minus 1. Now in this if I put x equals to 3, so 3 minus alpha, I'll get the series जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, 3 minus alpha square up till 3 minus alpha की power n minus 1 is 1 plus 3 square up till 3 की power n minus 1. This is nothing but the sum of a GP whose first term is 1. Common ratio is 3, number of terms are n, 3 raised to the power n minus 1 upon 3 minus 1, that becomes 2. So our answer becomes 3 raised to the power n minus 1 by 2, which is written in option number C. ठीक है, तो बेटा ऐसे, अब कई बार क्या होता है, इसका हम दोनों तरफ log भी ले लेते हैं, तो वो कई बार पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कैसी कैसी चीजें आ सकती हैं, 1 अपॉन 3 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती लेट्स से, तो कैसे प्रोसीड करते, तो हम क्या करते, वी विल बी टेकिंग log ऑफ दिस ऑन बोथ द साइड, log ले लूंगा तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका log ले रखा है और डिफरेंशिएशन, तो उसमें फिर x को 3 रखकर जो आंसर आता आ जाता है, ठीक है ना। तो दो चीजें बताई, इस टाइप की सीरीज है 1 अपॉन में, तो पहले इसका log लो और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। डायरेक्टली प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्टली x को कुछ रखकर जो भी बन रहा है जीपी उसका सम निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड इन सच क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल बेटा फॉर दिस सेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इतना मेंस के लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, और इसी में से मैक्सिमम टाइम्स आपके जो है क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। So you just practice from your previous year's questions and you can revise the concepts from here, and I'm sure you will be able to solve your questions. Okay? प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में, तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।